in Monday, that 26th Jan of Sports Day, leave. So I was unable. Okay, nice. Okay, welcome How back. are you? Yeah, I'm fine, Beta. I'm fine. Hope you all are also doing well only. Okay. Yes, ma'am. Okay. So before starting the class, one more thing I have to tell that it has been told art integration, isn't that art integration? Art integration form also I have Google form also I have shared. Yes, ma'am. Okay. Sent it. हाँ तो कुछ लोगों ने सेंड किया है, कुछ लोगों ने सेंड नहीं किया है. गुड मॉर्निंग मिली. Okay, some people have sent and some people have not sent. So I request you, and it is a request, not it. If you are not submitting, you are not going to get the marks, because you know that nowadays art integrated project is also going on in every schools. आपको marks उसका marks रहेगा. And if you are not submitting art integration projects, then you are not don't expect mark from us. Okay, is it clear? And I hope so by Saturday, today is 28th, isn't that? Today is 28th, 29, 30. Last day, 31 is Sunday. Okay. तो आपको बाई सैटरडे आपको पूरा फिनिश कर देना है. जिसने आप गूगल फॉर्म में अपना अपना सबमिट करते जाइए. अगर जमा नहीं हुआ है तो आपको नंबर स्कोर नहीं मिलेगा. We can't run behind you. And tell your friends also, those who are not in this class, because I can see the strength is very less. Okay, only 14 participants are there. Tell rest all also that to submit their art integration projects. Okay, so in the last class we were discussing. Understood na? Sabko samajh mein? I have submitted in your WhatsApp. WhatsApp, why I am not preferring, I am telling you that because so many classes are there. Most of all of them have sent the maximum are sending in the WhatsApp. My WhatsApp is getting jammed. इतना सारा मेरे पास आ गया. अभी ऊपर नीचे बहुत सारा मैसेज हो गया है. कौन किसका है? And mostly numbers are not saved to me. Different numbers are there. How many? By if I missed anybody's, then I can't tell ना. Let me check it again today. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने भेज दिया है, और अगर खासकर सिर्फ anybody has sent me through the mail, please mail send your mail ID to me. Okay? और हाय हेलो लिख के कुछ भी मैसेज करके भेज देना अगर आपने व्हाट्सएप में भेजा है तो, बिकॉज आई विल डू दैट वर्क टुडे. ओके, सो इफ यू हैव गिवन दैट इन द थ्रू द व्हाट्सएप. ओके वीरम, गुड. गूगल फॉर्म के लिंक से भेजा है बेटा, गुड. हमको वहीं से मिल जाएगा. और अगर किसी ने मुझे पहले से ही भेज दिया, आई विल चेक दैट, बट बाय चांस इट कैन बी मिस. सो इफ यू आर गोइंग टू सेंडिंग इट टू द व्हाट्सएप, प्लीज सेंड ऑलरेडी सेंड टू द WhatsApp, through the WhatsApp, then send the hi hello message to that. Google form link कहाँ है? Google form link ऑनलाइन क्लास 10th में मैंने भेज दिया ना बेटा. ठीक है? ओके मैम. ओके, चलो अब इसमें छोड़ के अब अपन वापस बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, जो अपना मेन चीज है. दैट मीन्स वी हैव टू डिस्कस द सैंपल पेपर्स. ओके, सैंपल पेपर्स डिस्कशन वी हैव टू डू. Okay, and if any particular chapter, Good morning, ma'am. Good morning, beta. Any particular chapter or any particular topic which is not understood or not clear, okay, beforehand tell me only, because I will not discuss sample paper on that particular day. I will discuss that particular topic, because now this is the time for the clearing of doubts only, nothing else. So let's coming back to this. This is the 2020-21 sample paper. Okay, you have already gone through it, so I am not giving the stress to this particular sample paper. आपका हो चुका है ये? I am asking you people only. Okay, मैं शुरू से करा देती हूँ, इसको ज़्यादा बेटर है, because I think I know your class I not discussed. Okay, so this is the 2020-21 sample paper. Okay. So here the first question is, list any two observation when ferrous sulfate is heated in a dry test tube. अच्छा, एक और चीज, अब मैं आपका 10 मार्क्स का बीच में आपका टेस्ट लेते रहूंगी. ओके, सो प्लीज गेट रेडी. मे बी नॉट ऑन मंडे, मे बी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक. ओके, नेक्स्ट वीक सैटरडे, गेट रेडी. सो दिस आपका क्या रहेगा? लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था. तो ferrous sulfate, if you are heating ferrous sulfate, what will happen? Ferrous sulfate is a green color decomposition. क्या होता है? Green color का सॉल्वेंट है.
SO3. Ma'am, precipitate. Green color salt. When you are heating this ferrous sulfate, this is hydrated ferrous sulfate. Ferrous sulfate को अगर गर्म करोगे तो क्या बनेगा? This is a what will be formed? Fe2O3. Fe2O3. Yes. Plus SO2 plus SO3. Fe2O3 Yes, ma'am. plus SO2 plus Plus SO3. okay. SO3. Yeah, SO3 and when you are balancing it, it will be like this. Okay. मैम फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 मिलेगा। ऑक्साइड है भाई, Sulfur dioxide and sulfur trioxide. रिजल्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में फेरिक ऑक्साइड, Oxide, ये brown सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके और आपको ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा? एक ऑब्जर्वेशन सबने सही लिखा कि that means there is a change in the color, that everybody has written correct, good, but most of you have written PPT. that means there is a evolution of a gas. इस particular thing को आप लोगों ने बहुत लोगों ने नहीं लिखा, that means this one, that there is a evolution of gas. That means sulfur dioxide and sulfur trioxide gas is released. That particular point most of you has. मैम Okay, one more thing. It is which type of reaction? It is a thermal decomposition reaction. सिर्फ decomposition थर्मल छोड़ दिया क्यों? मैंने क्या बोला? एग्जाम आपको ऐसे लिखना है जैसे एग्जामिनर को आता नहीं है, आपको बताना है उसको। वो एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो। स्टूडेंट को आप क्या करोगे? आप सब बताओगे, आपके पास जो नॉलेज है। वैसे ही एग्जामिनर को भी आपको जो पता है वो बताना है, ठीक है? दैट मीन्स इफ इट इज आस्किंग व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स इट इज योर ड्यूटी टू राइट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो आपको स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो करके। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा हाँ, next is identify the product formed when 1 ml of dilute hydrochloric acid is added to 1 gram of sodium metal. So metal reacts with acid to give what? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। Yes, good. Metal reacts with acid to give salt and hydrogen gas. So sodium Yes. to give H2 plus NaCl. here. acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. Yes, salt दिया है, हाँ। Only nitric acid, हाँ, ये nitric acid वाला चीज में से वीरम ने भी पूछा था। So I will tell you all also. When there is a reaction of a metal with nitric acid एक बहुत ज्यादा strong oxidizing agent होता है। तो वो क्या करता है? When there is a release of hydrogen gas, वो उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या हो जाएगा? आपको नाइट्रिक एसिड के साथ आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता, वाटर मिलता है। तो ये क्वेश्चन है भी आपकी कोर्स में, why on reaction with nitric acid we do not get hydrogen gas? तो हाइड्रोजन गैस सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो क्या करेगा? आपके जो हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अब हमको क्या करें? हमको पानी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो आप क्या करो? उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही कम कर दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? नाइट्रिक एसिड है। तो मुझे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन भी कराना है, मुझे वाटर भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? इफ आई एम डूइंग वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड करते जाऊंगी तो क्या होगा? डाइल्यूट करते जा रही मतलब एसिड कम हो रहा है, पानी ज्यादा हो रहा है कि नहीं? सो इफ आई एम टेकिंग वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, व्हाट विल हैपन? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड। और अगर amount of oxidizing agent is reduced, then what will happen? The chances of hydrogen to getting oxidized into water is reduced. That means hydrogen will not get oxidized. So if you are taking very very dilute nitric acid, then there is a possibility of formation of hydrogen. Okay, is it clear? clear. Okay, now next, chemical formula of the salt to use to remove permanent hardness. Permanent hardness ये तो याद ही रख लो, ये क्या आएगा? washing powder, washing soda, soda, Na2CO3 Washing dot soda. 10H2O, washing soda. Na2CO3 dot Na2CO3.10H2O. Yes, जितने Yes, भी ma'am. salt है सबका फॉर्मूला याद रखना, Na2CO3 dot Yes, ma'am. ओके, वॉशिंग सोडा, और सबका फॉर्मेशन भी। ओके,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैम वॉशिंग सोडा कैसे फॉर्म मतलब बनता है? washing soda is formed from your मैम मैं baking soda. सोडियम कार्बोनेट। मैम सोडा ऐश गर्म करने से सोडा ऐश व्हेन एडेड विथ वाटर। यस, बेकिंग सोडा को अगर आप गर्म करोगे तो उसके हीटिंग करने से सोडा ऐश निकलता है, और सोडा ऐश को जब मैम उसमें H2O और CO2 भी निकलेगा ना फिर? या उसमें H मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, तो फिर उसको सेपरेट कैसे करेंगे? मीन्स वो एयर से निकल जाएगा कि? निकलता है ना, आप सॉलिड फॉर्म में निकलेगा तो सेपरेट नहीं कर सकते। आप बोल रहे हो बेकिंग सोडा को गर्म करोगे तो वाटर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। वाटर तो लिक्विड है भाई, ये सॉलिड है, इसको आप डिकैंट करवा सकते हो, बड़े लेवल पे फिल्ट्रेशन हो सकता है, और CO2 तो गैस है, वो तो एस्केप आउट हो जाएगा। तो इसमें सेपरेशन का कोई बड़ा डिफिकल्टी नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, यस यस मैम। ओके। विच आर द फॉलोइंग मैम मैम जैसे मेकिंग वगैरह आएगा एग्जाम में कि नहीं आएगा? जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का मेकिंग कैसे होता है, वैसा टाइप का चीज। मेकिंग देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं है, सीबीएसई से आपका जो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस पूरा हट गया, सबका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब रिएक्शन, रिएक्शन जो है ना आपका, एक यस हाँ सबके हाँ रिएक्शन। यस मैम, वो जैसे तो आपको सब सॉर्ट में एक उसके यूजर्स भी रहेंगे ना? हाँ क्या यूजर्स भी रहेंगे ना जैसे उसके? यूजर्स क्यों याद रखते यूजर्स हैं? एसिड बेस में। यूजर्स को जैसे यूजर्स को देखो, अभी परमानेंट हार्डनेस करके पूछा ना, इनडायरेक्टली पूछता है, कोई भी डायरेक्ट नहीं पूछता। हाँ ओके, इनडायरेक्टली पूछने के लिए रखता है, और कभी कभार एक्स्ट्रा 1-2 मार्क के लिए आपको वो जो स्कोर करने के लिए आपको डाल देता है कि हाँ इसका एक एक्स्ट्रा यूज लिखो या 2 यूज लिखो, ऐसे लिख के डाल देता है। ओके, वो जनरली 1 मार्क से ज्यादा का नहीं होता, लेकिन सारे सॉर्ट्स का CO3 करना है ना इसमें तो। मैम मतलब प्रिपरेशन नहीं प्रिपरेशन में Reaction आएगा प्रिंसिपल यानी केमिकल रिएक्शन सबका पढ़ना है। ओके, सारे सॉल्ट्स का केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, उसका प्रिंसिपल मींस ये प्रिपरेशन में सबके केमिकल इक्वेशन लिखे हुए हैं ना, वो पढ़ना है आपको। और यूसेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको, और यूसेस कैसे, कॉमन यूसेस, जैसे ये परमानेंट हार्डनेस वाला आ गया, ब्लीचिंग एजेंट वाला आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ब्रोकन बोन्स को जॉइंट करने वाला है, या फिर फिगर्स वगैरह बनाने के लिए स्टैचूज वगैरह बनाना, ये क्या है, उसका कॉमन यूज है। और बेकिंग यस, बेकिंग सोडा के केस में आपको वो केक वगैरह का एग्जांपल है, एंटासिड है, तो ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर। यस फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे कॉमन यूजेस जो कि यूज हो जाए, ऐसे कॉमन यूजेस जो कि आपको क्लिक करे कि वो पर्टिकुलर सॉल्ट कैसा है, वही पर्टिकुलर यूजेस याद रखना, ज्यादा आपको कुछ स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक है, ओके। मैम जैसे एसिडिटी वगैरह का क्वेश्चन आ गया, एसिडिटी वगैरह वाला या गिवन सॉल्ट इज तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्योर करने के लिए लिख सकते हैं कि बेकिंग सोडा लिखना है? दोनों लिख सकते हैं। दोनों लिख सकते हैं, एंटासिड मतलब एंटासिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखने में नंबर कट जाए ऐसा तो काम नहीं होगा ना मैम? नहीं होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हो। यस मैम। ठीक है, अब और मैम जो जब फॉर्मिक एसिड रहता है तो उसमें एंटासिड लगाते हैं ना? फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिड है ना बेटा। मधुमक्खी काट एंटासिड, हाँ एंटासिड में आपका कोई लगा सकते हो, फॉर्मिक एसिड वही एंट वाला चूना, बी स्टिंग में। हाँ चूना लगाओगे उसके लिए। ओके, कब should I stop here and coming back to the topic? Name the write the chemical which of the following is not observed in a homologous series? homologous अब बताओ, इस इतने साल तक अभी तक से चैप्टर नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस साल क्या हुआ, उसके बहुत सारे पोर्शन ओमिट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या निकला आपका, ये होमोलोगस सीरीज है ना। होमोलोगस सीरीज के बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो भी हैं, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बनाना है आपको, अभी मैं करवाऊंगी अभी आपको एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो होमोलोगस सीरीज पूरा कर लो, उसमें छोड़ना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये।
तो अब ये चैप्टर नंबर 4 में अब हम होमोलोगस सीरीज देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो होमोलोगस सीरीज में नहीं मिल रहा है। सबसे पहला चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, पहला चीज ही रॉन्ग है। because in homologous series their base is based on what? Yes, ma'am. Series of compound having similar chemical property, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? Change in chemical property. Yes, ma'am. That is the first statement is only wrong. Rest all are correct because all are differing by subsequent members are differing by CH2, that is 14 units. There is a gradation in the physical property. They are having same functional group. These all are correct. अब ये जो पॉइंट है इसको आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो। होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, उसमें भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट next is where it is, yeah, assertion and reasoning. हाँ, you can see here. So ये क्वेश्चन मैंने आपको ये पेपर मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दिया है क्या? यस मैम, लग रहा है सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस है मैम। जैसे ये हो गया कैल्शियम क्वेश्चन मैंने पेपर। आपको करवा दिया है। ओके, यस मैम। ये मेटालिक कैरेक्टर वाला नहीं हुआ है। ओके, मेटालिक कैरेक्टर वाला नहीं हुआ। सो दिस अब ये क्या, ये तो पेपर में भी आया था। यस, आपका अब पैरा बेस्ड क्वेश्चन है आपके कोर्स में, है कि नहीं? तो एक पैरा दिया रहेगा, उस पैरा से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन होंगे, बाकी सब उस टॉपिक से रिलेटेड होगा, लेकिन उसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये टॉपिक पैरा दिया गया है। ये पैरा में मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताया गया है, और साथ ही साथ ये एक ग्राफ दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड है, बहुत इजी है। अब इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि एटॉमिक रेडियाई के साथ जो हो रहा है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है। और एक और चीज नोटिस करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे के सारे क्या है? एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? फर्स्ट ग्रुप। ये 17th ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप। ओके, इनको भी याद करना है। यस मैम। ये इनको भी याद करना बड़ा इजी है। ओके, तो ये जो है एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो यानी कि ये एक, दिस इज टेलिंग द ग्रुप इन द ट्रेंड इन द ग्रुप्स। ये क्या बता रहा है? एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड बता रहा है विद इन द ग्रुप। और इस ग्राफ को देख के ही हम समझ सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई जो है एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ रहा है इन केस ऑफ ग्रुप्स। इन अ ग्रुप, इन अ कॉलम, द रेडियाई इज इंक्रीजिंग विद द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे क्या है? आप अगर ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जितने भी दिख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा? यहाँ पे ग्राफ देख के बता सकते हो? मैम CS। सीजियम, देन रुबीडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, अब यहाँ पे लिथियम। देखिए कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? ये वाला। सो दैट मींस द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यस यस मैम। Now, अब यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन is placed along with the alkali metals in the modern periodic table, though it shows the. Excuse me, ma'am. Ma'am, in the first question, last one will be lithium, so there will. नहीं, cesium. Option C will be correct. ऑप्शन सी। सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम कहाँ पे है? यही तो है। नहीं, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी। Option C, ma'am. हाँ, ऑप्शन सी में है। मैं सीजियम, रुबीडियम को बस देखी, सॉरी। सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम एंड सोडियम, लिथियम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी माय मिस्टेक। अब बारी आती है किसकी? हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विद द अल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन स्पाइट इट शोज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है, फिर भी हम उसको कहाँ पे कर रहे हैं? अल्कली मेटल के साथ। तो ऐसा क्या चीज करता है अल्कली मेटल्स के जैसा हाइड्रोजन? Ma'am, option 2. ऑप्शन नंबर 2, यस। हाइड्रोजन के पास एक टेंडेंसी कर है, देता है, yes, ma'am. यस, वो इलेक्ट्रॉन लेता भी है तो इलेक्ट्रॉन देता भी है। वो H+ आयन भी बनाता है, और H+ आयन बनाने के लिए उसको कितना है? एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। और वो कौन करता है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की भी वैलेंसी क्या होती है? 1,
So that means it is losing one electron like alkali metals to form positive ions. So that's why it is behaving like this one, option number B. Clear? That's why it is placed along with the alkali metals. Okay? Next, which of the following has highest electronegativity? Highest electronegativity F. किसका? ऑप्शन ए क्यों? फ्लोरीन डिक्रीज फ्लोरीन होता है फ्लोरीन। मैम, क्योंकि इसका सबसे कम एटॉमिक नंबर है, उसकी रेडियाई की साइज भी छोटी है। Yes. Wait, huh? One more. Little bit. I have to ask somebody. Arpit, are you there? Yes, ma'am. Arpit, why they are saying that fluorine is the most electronegative element? Ma'am, what? Why fluorine is the most electronegative element here? Ma'am, just a second, huh? What is that thing? मैम Yes. मैम क्योंकि उसमें ना जो क्या बोलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और 2 शेल रहता है। Lily, I can see your answers good. अरे बेटा ये सारे मैम element है. मैम Yes. मैम आई थिंक Ma'am, रीजन may I कैन say- बी मैम मैम क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसीलिए जो ऊपर में रहेगा वो कम मेटेलिक रहेगा, तो वो मतलब कम लूज करेगा, तो उसका ये मीनिंग जाएगा कि वो ज्यादा गेन करेगा। तो गेनिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। Down. मैम ऐसे बोल दे, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते। तो सबसे पहला जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो सबसे अट्रैक्टिव नॉन मेटल होगा। मैम मतलब मैम गांगुली दादा वापस से चले गए। मैम उससे क्या को जानता है? जैसे सौरभ फर्स्ट और गांगुली को नहीं सेकंड जानता ग्रुप बे। में I'm not able to. जनरली क्या बैल? मेटल्स हैं। क्रिकेट और जानता है? जहाँ- क्रिकेट हैं? अर्पित तो सौरभ गांधा को नहीं जानता। अर्पित Be quiet. अर्पित I'm discussing sample paper with you. Don't start discussing cricket here. Viran, tell. You can also see that yes ma'am in first and second group generally we have metals, and as we move left towards the group we see that non-metallic character is increasing. So fluorine is the most electronegative, as metal are electron donor, so they will not be electronegative, they will be electropositive. So non-metal will be electronegative. That's why option number A fluorine. Okay. मैम लेकिन इसमें तो सिर्फ ग्रुप का है, पीरियड का कहाँ पूछा? मैम आपको कंपैरिजन या मेटल्स के साथ तो करना ही नहीं है, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। वही तो। और सारे की खास बात ये है कि सब एक ही तरीके के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हैं, तो यानी ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। इसलिए आपका रीजन भी ग्रुप मैम मैं ट्राई एक मिनट बहुत सारे। मैम जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं तो एटॉमिक सेल बढ़ती जाती है, तो न्यूक्लियस सेल से उतना दूर होते जाता है, तो उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है होल्ड करने की इलेक्ट्रॉन को। Okay, down the group radii increases, so the tendency to gain electron is also decreasing. That's why electronegativity is also decreasing. And fluorine is the topmost element Yes, of that ma'am. particular group. Okay? Hence it is the highest electronegative. Yes, most electronegative element. मैम क्लोरीन और Yeah. मैम क्लोरीन टॉप मोस्ट है कि मतलब फ्लोरीन टॉप मोस्ट है? फ्लोरीन है ना? Fluorine. F. फ्लोरीन का 9 है और क्लोरीन का 17 है। मैम Yes ma'am. Identify the reason for the gradual change in electronegative in halogens. Just अभी मैं यहाँ पे डिस्कस किए, देखो अभी जो डिस्कस किए वही है। Ma'am, same. Electronegativity increases down the group due to increase in force of attraction between nucleus and valence electron. बस एकदम यहाँ पे आया ये। Option number B.
नो, ये वाला सही है ना मैम, क्योंकि एटॉमिक ये। रेडियस ज्यादा बढ़ेगा तो देखो यहाँ पे मतलब कंफ्यूजिंग है, देखो देखो ज्यादा- यहाँ पे आपको गलती करने के लिए बहुत सारी सब जगह यहाँ क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन, वो तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ और मैम डिक्रीज इन लूज लिखा है ना, वो गेन होगा। ड्यू टू डिक्रीज थोड़ी होता है, डाउन द ग्रुप जाते तो इंक्रीज होता है ना, लूज करने की टेंडेंसी। Yes, ma'am. और ये Option C. है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी गलत हो गया भाई, क्योंकि डाउन द ग्रुप से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो कम हो जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर Yes, द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, which of Yes, the following reason correctly justify fluorine has a smaller atomic radius than lithium? lithium से छोटा है क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एंड लिथियम क्या होते हैं, एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, है ना, एंड अलोंग द पीरियड द साइज डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देखो क्या है, no, not this one ऑप्शन decreases from left to right, that means option number D. हाँ मैम, Okay. क्योंकि मैम Ma'am, we have to attend any 4 ना? Yes, but अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, attempt any 4, but you have to, I am just asking you to solve now or everything. ओके, अभी हम डिस्कस Yes, करेंगे, ma'am. लेकिन नेक्स्ट क्लास में अब रिटर्न लूंगी अब मैं। ओके, यस मैम। and please be quick, I will be not asking you about the art integration project। जो गूगल फॉर्म में अपना अपना डालते जाइए, और अगर किसी ने मुझे व्हाट्सएप में ऑलरेडी भेज दिया है अपना, तो प्लीज हाय हेलो लिख के मेरे को वापस रीसेंड कर दीजिए, और अगर किसी ने मेल किया है तो देन सेंड योर मेल आईडी प्लीज। Okay, now coming back to this question, this is the another type of the question which is no, not this one. Give a test that can be used to confirm the presence of carbon in the compound. Write the valency with a valency of 4, how is carbon able to attain noble gas configuration in its compound? तो सारी सी बात है, अगर कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की करता है कि वाटर मिल्की, यस मैम। यस, तो कार्बन का कंफर्मेशन करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली उस कंपाउंड को बर्न करो, बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एंड पास दैट कार्बन उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करना है ना। यस, क्लाइंट विल कन्वर्ट इनटू Yes, मैम या कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो H2O और CO2 मिलेगा। भाई वही तो बर्निंग हुई क्या? 1 सेकंड हाँ भाई। मैं नेट कोड के लिए आई थी। नहीं चाहिए मुझे, मैं नेट कैसे ले लूंगी, नहीं चाहिए नेट। Okay, coming back to the class. Okay, coming back to the class, it is there. हाँ, क्या कौन से क्वेश्चन में थे, कार्बन कंपाउंड्स बर्न होने से, कार्बन कंपाउंड इफ इट इज बर्निंग दे आर लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। ओके, अगर यही चीज अगर हाइड्रोजन गैस होता तो क्या होता, व्हाट यू विल डू मैम? पॉप साउंड, लाओ तो Pop sound when brought near the candle, burning flame. अपना अभी क्लास 10th में सिर्फ 2 ही गैस का है, सबसे ज्यादा 2 गैस के बारे में पूछेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों का टेस्ट याद रखना। ओके मैम, स्मूथी फ्लेम क्या होता है? स्मूथी फ्लेम हाइड्रोजन का बता दीजिए ना। हाइड्रोजन का तो
पॉप्स ऑन। जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगा उसको आप सोप वाटर से पास करोगे तो बबल्स निकलेगा। अगर उस बबल के पास आप मैच स्टिक लाओगे, बर्निंग मैच स्टिक लाओगे तो वो पॉप साउंड, लाइक जस्ट लाइक अ ओपनिंग ऑफ अ बॉटल, हाउ इट इज पट करके साउंड आती है ना, लाइक दैट सेम साउंड विल बी कमिंग। दैट्स व्हाई दैट इज अ पॉप साउंड फॉर द हाइड्रोजन। ओके, अब क्या बोल रहे थे बेटा? कौन? सूदी फ्लेम क्या बोल रहे थे? स्मूथी फ्लेम क्या होता है मैम? सूदी फ्लेम, सूदी फ्लेम मतलब सूटी, सूटी SOOTY, वो काला काला धुआं निकलता है ना, सूटी फ्लेम, वो रिप्रेजेंट करता है कि कंबशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो आपका सूटी फ्लेम ज्यादा निकलेगा। ठीक है मैम, जैसे डामर वगैरह जैसे रोड बनती है उस टाइम सूटी फ्लेम निकलता है, और जैसे जो एलपीजी रहता है कंप्लीट कंबशन है उसमें कोई सूटी फ्लेम नहीं होता। हाँ, लेकिन जैसे ही हाँ, एलपीजी जैसे खत्म होने LPG लगता जलता है, सिलेंडर खत्म होने लगता है, बर्तन नीचे से काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस यस मैम, यस मैम, कि नहीं। तो यहाँ यस मैम। तो कंप्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन से रिलेटेड है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट, विद द वैलेंसी 4 हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स कंपाउंड। ओके, अब विद द वैलेंसी 4 में, फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, या बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। 4 कोवेलेंट बॉन्ड इट विल फॉर्म। हाँ, इसी में वो जो 4 जो पॉइंट्स है ना, व्हाई डज कार्बन फॉर्म सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर ये पूछा जाए तो आप ये याद रखोगे। ठीक है, उसमें तो मैम हाई कैटिनेंसी भी बोल सकते हैं ना। हाँ, उसमें आप पॉइंट याद रखना, 4 कैटिन, मैं क्या बोल रही हूँ, उससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स है आपके पास में, कोवैलेंसी, कैटिनेशन और कोवैलेंसी। ठीक है, बता दिया ना। मैम वो लंबा बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन क्या होता है, रिपीट कर दीजिए। कैटिनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। Catenation means when an atom forms a single bond with a similar type of atom. जैसे कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो भी स्टेबल, अनस्टेबल वाला नहीं, स्टेबल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो वो क्या कहलाता है? कैटिनेशन। Catenation is a tendency of an atom to connect to the other similar atoms with a single covalent bond to form a chain. समझ में आया? Catenation is a मैम लाइक फ्लोरीन। फ्लोरीन ma'am. कैटिनेशन नहीं करता, फ्लोरीन नहीं करता। मैम सल्फर करता है। मैम मैंने फ्लोरीन सुना है कि हाइड्राइड मैम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फ्लोरीन C60। फ्लोरीन, हाँ, ओके, now I heard fluorine. Arpit, stop doing that. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ये कैटिनेशन हो गया। अब सेल्फ लिंकिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन दोस फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 रीजन। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो अभी जो क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी आपको बोला कि व्हाई डज कार्बन फॉर्म सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें आपका कैटिनेशन आ जाता है, उसमें आपका कोवैलेंसी आ जाता है। ठीक है, और खुद से कर देते सब कोवैलेंसी। यस, तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। सी, चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया है। कंडेंस हो गया मतलब आपको आसानी से पता चल गया कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है। तो कार्बन का ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना, ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा टॉप क्वेश्चन जो है आपका ग्राफाइट और डायमंड वाला हो गया। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, और चौथा है आपका होमोलोगस सीरीज। तो आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट, अगर ये चारों टॉपिक क्लास में सोप का बताओगे क्या? हाँ मैम को ये क्लास में सोप का बताओगे क्या? सोप फॉर्मेशन, सोप तो अभी आपके कोर्स से ओमिट हो चुका है ना बेटा। कोई क्लास में ना, मतलब स्पेसिफिक एक मतलब होमोलोगस सीरीज के ऊपर वो फॉर्मूलाज और वो सब करेंगे। होमोलोगस सीरीज, ओके, तो नेक्स्ट क्लास डन, आपको होमोलोगस सीरीज करा दूंगी। हम उसके फॉर्मूला जो रहते हैं। ठीक है, यस मैम। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जितने भी कंपाउंड्स है सबके जनरल फॉर्मूला कराऊंगी, सबका होमोलोगस सीरीज बताऊंगी और होमोलोग कैसे बनाना ये बताऊंगी। ठीक है, ओके, और कोई टॉपिक? यस मैम वो बोल रहे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कुछ ऐसा। स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी आवाज हम चाहेंगे।
Chat भेज दो बेटा. I can see the chat. Viram, send me the chat because your voice is not audible. Okay, ma'am. Ayush, what is going on this? Huh? Where is he? यस मैम. क्या लिखा है तुमने चैट में? मैम मैंने क्या लिखा? No, आयुष मैम वो कांकरिया. कांकरिया और ये आयुष आयुष लूनिया है। लूनिया है, he is not. मैम ये लूनिया है, नहीं कर सकते ऐसा काम। where is Ayush Kankaria? Left the class. ये सब क्लास में लिखोगे आप लोग? यस मैम, he lived. बदतमीज हो गए एकदम. I just wait one second बेटा, 1 second. We are discussing here paper and just 1 second. This type of comment I will not accept. Okay, now coming back to the next question, question number 24. Question number 24 आपका ये है, आपका टेबल दिया गया है. ये टेबल देख के आप रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज कर सकते हो. So if we are arranging, so इसमें कौन सा एलिमेंट सारे सॉल्ट्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है? तो Q के साथ Q जो है वो सबके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, यानी सबको डिस्प्लेस कर दे रहा है. That means yes, Arihant, what happened? Ma'am, Viram is asking one question. Q is If we will potassium. define strong and weak acid on the basis of ionization, then it is correct or not? Yes, on that basis only you are defining, na? Strong acid means they are completely ionized in aqueous solution, and weak acid means not partially ionized. That is only the criteria. That is only the correct criteria. Then Q Viram will is be saying okay, ma'am. potassium. Yeah. Then Q will be potassium. Yeah. Q potassium in question number 24. Q Yes. potassium. Q is potassium and it is the most reactive element because यहाँ पे सब जगह reaction हो रहा है. Then second most reactive element is what? जो at least minimum 2 salt, यानी कि आपका Ma'am, I think R is Ma'am, most reactive P है. ferrous. P. Iron. R is iron. P1 is showing the reaction. P Yes, जो है ma'am. जिंक और कैल्शियम दोनों को डिस्प्लेस कर दे रहा है, लेकिन R जो है वो सिर्फ जिंक को डिस्प्लेस कर पा रहा है, बाकी किसी को नहीं. R iron होगा. Okay, so the most reactive element here will be most reactive element जो रहेगा वो Q. most will be reactive will be Q. Q जो है सबको डिस्प्लेस कर दे रहा है. यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होना चाहिए था. As they have written the most reactive. S जबकि उल्टा है. This answer is little bit wrong because S जो होगा वो least reactive होगा, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहा है. किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहा है मतलब वो least reactive है कि नहीं? किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है ना? तो उस हिसाब से जो S जो है वो least reactive. मैम साइन उल्टा लगा दिए. हाँ, साइन उल्टा भी लगा दिए हैं और ये गलत है, तो ये इसको देख लेना. मैम वही साइन का कंफ्यूजन होता है. It is wrong. QPRS आएगा. QPRS आएगा. Yes, ma'am. Now next is QPRS. write the chemical formula of the product formed when Q reacts with CuSO4 solution. तो CuSO4 के साथ KSO4, K2SO4 plus Q gives QSO4 plus Q. QSO4 हमको कैसे पता चला वो QSO4 है? क्यों हम बोल रहे हैं QSO4 है? Why is it QSO4? मैम क्योंकि वो डिस्प्लेस कर रहा है सबको. सबको डिस्प्लेस कर रहा है.